Good morning, students. In previous classes, we have seen trigonometric functions. Today, based on those functions, I will be explaining some numericals. I will be explaining, and you can see 0 to 90 first quadrant, 90 to 180 second quadrant, 180 to 270 third quadrant, and 270 to 360, 270 to 360 fourth quadrant. This is the fourth quadrant. Clear? Four quadrants. So we know that it is the first quadrant is for the positive, and second quadrant sine and its reciprocal, sine and its reciprocal cosec are positive. Third quadrant tan and its reciprocal cot are positive. Fourth quadrant cos and its reciprocal sec are positive. These all the things I have explained in the previous class. First quadrant all are the positive, second quadrant only sine and its reciprocal cosec are positive, and third quadrant tan and its reciprocal cot are positive, and fourth quadrant cos and its reciprocal sec are positive. Clear? And one more thing also I explained, if it is 90 and 270, and for I is 90 and 270, base function sine is given, suppose base function sine is given, and also be coming in terms of cos. Clear? So this is the base function, otherwise you can say first sine is given, angles 90 and 270. For angles 90 270, in question sine is given, answer will be in terms of cos. Suppose in question cos is given, answer will be in terms of sine. Okay? And in question tan is given, the answer will be in terms of cot. And in question cot is given, answer will be in terms of tan. And question sec is given, answer will be in terms of cosec. And question cosec is given, and answer will be sec. So these rules I have explained. You should learn. Okay, you should remember these things. And 180 and 360, and 180 and 360 there is no problem. Base function what is given? Suppose base function is sine is given, or in question sine is given. Answer will be it comes in terms of sine for angles 180 and 360. Clear? And suppose function is given, tan is given, answer will become in terms of tan only for 180 and 360. Clear? So these rules already explained in this framework. So based by using these rules, we will be doing some numericals today. Suppose here it is given cos 2tan. Cos 2tan. What is the value of cos 2tan? This is not a standard angle. So normally आप लोगों को पता होगा आपको 90 degrees. That also for 0 angle and 30 degrees, 45, 60 and 90. So these angles means you may by hearted in the class 9th and 10th. Okay, 0, 30, 45, 60, 90. Clear? But here is cos 210. Cos 210 is cos 210 value out of find out. So for finding these type of angles, already I have given some rules I have given. Now 210. 210 will be coming in which quadrant you can see? Cos 210. Cos 210. That is the between 180 and 270. That is third quadrant. Okay, third quadrant. The angle in third quadrant. Okay. So when you see from this diagram, okay, you can say that easily. What is 230 is it? 230 will be in third quadrant. 230 it will be in third quadrant means. But whenever they give any angle, let them give any angle, doesn't matter. आप क्या करना है? What we have to do? What we have to do? We have to write the combinations of 90 or 270 or 180, 360. Clear? Whenever let them give any angle, doesn't matter. So, but you are able to write. You are able to write 90 plus theta, otherwise 90 minus theta, otherwise 270 plus theta, otherwise 270 minus theta. Similarly, 360 plus theta, 360 minus theta, 180 plus theta, 180 minus theta. ठीक, इसी कॉम्बिनेशन में कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. कभी कभी दो भी मिलेगा, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा. cos 210, cos 210 I can write. Cos 210 I can write. 180 plus 30 degrees can I write? 180 plus 30 degrees. That all right. हमारे पास केवल कॉम्बिनेशन चार है. It can be 90, it can be 270, it can be 180, or else it can be 360.
ठीक है। गिवन एंगल को कोई सा भी ये कोई सा भी एंगल का फॉर्म में प्लान है 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा नहीं 270 माइनस थीटा और 360 प्लस और माइनस थीटा 180 प्लस और माइनस थीटा। देख यार cos 210 is equal cos 210 I can write 180 plus theta। ओके 180 plus theta 180 plus theta ये देख लेना ऑलरेडी आप लोगों को ऐसे फॉर्मेट में आप लोगों को फॉर्मूला दिया cos 180 इसको हम मानेंगे थीटा cos 180 plus theta। देख अब देख ये कौन सा फॉर्म है cos 180 plus theta। Now it is in the form of the cos 180 plus theta। cos 180 plus theta means सर आप लोगों को हमने ऑलरेडी बोल चुका क्या आंसर आ सकता है क्या आंसर आ सकता है ठीक है। What is the base function cos and what is the angle 180? Cos is there 180 is there ठीक है। अब देखिए एंगल 180 में से क्वेश्चन में क्या फंक्शन होगा आंसर में भी सेम फंक्शन आएगा दैट मींस इधर भी क्या आंसर आएगा cos थीटा आएगा ठीक है cos थीटा आएगा। लेकिन उसके बाद हमने एक बात बताया था अब साइन भी देना पड़ेगा यार 180 is their angle then you can directly what is the best function cos best function cos is there and angle 180 होगा उससे सीधा अपने cos थीटा आंसर तो cos थीटा में आएगा। लेकिन उसके आगे प्लस भी हो सकते माइनस भी हो सकते हैं इसका साइन वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग फिर 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा में से कौन सा कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा 180 प्लस थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव है tan और cot are the positive अब then से देखेगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ओनली tan and its reciprocal cot are the positive। लेकिन व्हाट इज आवर बेस फंक्शन हियर cos ठीक है tan और cot पॉजिटिव मींस बाकी फंक्शंस माइनस दैट मींस cos भी क्या होगा माइनस होगा माइनस cos थीटा दिस व्हाट आई एक्सप्लेन ठीक है। अब ये दोनों को कंपैरिजन करेगा तो जस्ट कंपेयर दिस बोथ इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos 180 प्लस थीटा 210 को आप लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा और ये तो थीटा है ठीक है। नाउ व्हाट आंसर आई कैन हैव cos is there 180 is there इसको मानेंगे थीटा ठीक है इसको मानेंगे थीटा। नाउ व्हाट इज cos 30 degrees again cos 30 degrees not only that cos is there and angle is 180 means answer will be coming in terms of the cos theta only so theta is 30 degrees means cos क्या होगा। लेकिन इसके आगे आप क्या लिखना है माइनस वे और राइट हैंड साइड cos 180 प्लस थीटा ना cos 180 प्लस थीटा मींस कौन सा कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल tan and cot are the positive and remaining functions are negative that's why you can get this is the minus cos 30 minus cos 30 correct। and what is the value of the cos 30 value root 3 by 2 so therefore you can write answer is minus root 3 by 2 is the answer minus root 3 by 2 is the answer ठीक। अब देखिए cos 210 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दूसरा एक और कैसे करेंगे अब देखा हमने क्या किया था cos 180 प्लस थीटा को में लिखा cos 180 प्लस थीटा में लिखा हुआ था कितना आया था minus root 3 by 2। अब 210 को वैसे भी लिख सकते 270 minus 60 भी लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। देन आप व्हाट विल कम 270 minus 60 किसको बराबर होगा 210 अब कैसे भी लिख देना 180 plus 30 भी लिख देना 210 आएगा एंड 270 minus 60 you can add then also 210 इसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है कोई खास बात नहीं है ठीक है। तो कोई रॉकेट में मैथमेटिक्स नहीं अब सीधा जस्ट प्लस माइनस का फर्क है कोई दिक्कत नहीं यार 180 plus 30 भी 210 है एंड 270 minus 60 also 210 ठीक है। अब इसमें 180 प्लस थीटा होगा तो आंसर कितना आएगा माइनस रूट 3 बाई लेकिन 270 minus 60 270 minus 60 होगा तो इसका भी आंसर वो ही आएगा ओके। यू कैन राइट एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन डजंट मैटर दोनों केसेस में आंसर तो माइनस रूट 3 बाई 2 आएगा कैसा आएगा। अब देख ये कौन सा फॉर्म है अब देख सकते हैं 270 माइनस cos देखिए तो 270 माइनस थीटा फॉर्म 270 minus 270 अब 60 क्या होगा थीटा होगा ठीक है। अब 270 minus cos is there function is what 270 sorry function is what cos and angle is what 270 angle 270 होगा तो बेस फंक्शन में cos है आंसर किसमें आएगा sin में। अब देख लेना ऑलरेडी गिवन and question is given cos is given and angle is 27 then answer will come in terms of sin so what you get sin theta again ठीक है got my point angle is 270 and function base function is cos
सो ऑलरेडी हमने ये रूल्स बता देते हैं 270 के लिए sin is given in base function and is 270, then answer will be in terms of sin. I have the sin 70, that's okay. But here you have to see that which quotient it is, whether it's a plus or minus. 270 minus that. 270 minus that कौन सा quotient? Third quotient. 270 minus that third quotient. Third quotient में what functions are opposed to? केवल tan and cot. And बाकी functions minus. And what is our base function? Cos. Base function is cos means है cos इसमें negative है. That's why अब आगे क्या लिखना पड़ेगा? Minus sin theta. Okay. इसमें आप कैसे लिखेंगे? इसमें भी cos 270 60 का माना थीटा क्या आएगा? पहला तो आप लिखो sin 60 इसका आगे माइनस भी लिखना पड़ेगा. वही होगा कि माइनस मींस है दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट में बेस फंक्शन इसको मत देखो बेस फंक्शन इसको देख लो बेस फंक्शन इज cos अब cos के माइनस sin 60 मींस है माइनस रूट 3/2 लाइक दोनों का आंसर सेम ठीक है या here I will begin the some more process after that I will begin the homework that you have to complete it yeah the first question next second question suppose they have sin 930 degrees sin 930 degrees ठीक है जैसे 930 डिग्री पिछले में थोड़ा एंगल कम था पहले क्वेश्चन में 230 में हम आसान से बता सकते हैं 180 प्लस थीटा नहीं तो 180 माइनस थीटा देख अब इससे अब ये रूल लग गया ना एंगल 360 से ज्यादा होगा ठीक है अब ये आप याद कर लेना एंगल गिवन एंगल 360 से बड़ा वैल्यू होगा तो 930 इज व्हाट 360 से बड़ा ठीक है 360 से बड़ा हुआ तो हम कोशिश करेंगे इसको 360 में तोड़ने अब देखिए 360 में तोड़ लेना 360 प्लस 360 प्लस एक और बार 360 करेंगे तो कितना होगा 360 प्लस 900 प्लस 180 अब 1018 लेकिन इधर करते हैं 930 अब माइनस करके देख लेना करता है माइनस करेंगे तो 0 और 5 तो 150 आ रहा है सो अदरवाइज वी कैन डू वन थिंग हियर 360 प्लस 360 was 720 930 से 720 को माइनस करो माइनस करें तो 0 ये तो 1 आएगा ये तो 2 ठीक now you can say here it came here 260 plus 360 plus 360 and 210 360 plus 360 plus 210 is equal to that is 930 okay you can see how much will come this is the 930 degrees will become okay so 720 then 730 930 ठीक you can write like this first we'll be seeing it how many 360s are there 2 360s are there okay how many 360s are there 2 are there हम कितना भी होने दो सबको खत्म करके हम केवल एक ही 360 को रखेंगे गॉट माय पॉइंट हम क्या करेंगे इधर सब में से हम 360 कॉम्बिनेशन लिखेंगे 360 हमने कितना 360 आया था 2 आया था 2 आया तो एक को खत्म करेंगे केवल एक के रखेंगे अब 3 आएगा तो 2 को खत्म करेंगे एक को रखेंगे ठीक है अब 4 आएगा तो 3 को खत्म करेंगे एक को रखेंगे ठीक है अब ठीक है एक को खत्म किया था अभी ये बचा 360 एंड 210 अब इसको देखते हैं sin इज गिवन 360 इसको मान लेना क्या ठीक now this is sin is given 360 plus theta अब sin 360 plus theta sin 360 plus theta means है अगर किसमें जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं तो सीधा सीधा कर लेना तो कितना 360 से आएगा सबको खत्म कर ऐसे भी कर सकते हैं देर तो क्यों नहीं कर सकते 360 plus 360 आया था उसके बाद तीनों दो 360 को हमने क्या किया था खत्म किया था अब क्या बचेगा
210 बचा, ठीक है 210। अब साइन 210 फाइंड आउट करेगा तो ये बराबर होगा साइन 930, ठीक है। अब क्या पहले क्या करना पड़ेगा, एंगल 360 से बड़ा होगा तो आप लिखना पड़ेगा 360 के कॉम्बिनेशंस। अब 360 प्लस 360 प्लस 210 लिखा था मैं, ऐसे लिख सकते, ठीक है। अब तीनों को मिला करके 930 आएगा, क्लियर 930 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कहते हैं 360 सब 360 को खत्म करेंगे। अब 360 को खत्म करने के बाद अब आकर में क्या बचा है 210, ठीक है। अब ये 210 को फाइंड आउट करेंगे एंगल, ये एंगल बराबर होगा 930 को बराबर होगा, ठीक है। नो नीड टू वरी अबाउट सो मींस बिगर एंगल्स आर देयर, नो नीड टू वरी। ऐसा तोड़ देना, तोड़ने के बाद आखिर में क्या बचेगा उसको आप फाइंड आउट कर लेना, दैट विल बी इक्वल टू द गिवन एंगल। अब sin 210 मींस आगे में व्हाट इज sin 180 प्लस थीटा कैन इट sin 180 प्लस थीटा मींस sin 180 प्लस sin 180 प्लस 30 का हाफ में sin 180 प्लस 30। अब देखना sin इज एंड एंगल इज हाउ मच 180, ये तो थीटा है, ये तो थीटा। अब एंगल 180 होगा तो बेस फंक्शन में एंगल 180 होगा तो आंसर किसमें है, sin में है, sin 30 डिग्री, ठीक है। दैट मीन 180 360 के लिए अब नेक्स्ट देखो तो 180 360 के लिए इन बेस फंक्शन में एंगल 180 होगा तो, ठीक है। अब सेम फंक्शन will be coming in answer also, and what's the best function is sin, and what's the angle 180, and answer में भी क्या आएगा, sin का फंक्शन आएगा, ओके दैट इज द रूल। अब sin 30 से कौन सा कोडेड है, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 थर्ड कोडेड में क्या क्या पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है। अब लेकिन हमारा बेस फंक्शन क्या है, sin क्या होगा, माइनस होगा, माइनस sin 30। सो व्हाट इज 30 वैल्यू 1/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2, that is minus 1/2, this is equal to the sin 90, ठीक है। ऐसे बिगर एंगल्स दिया हुआ, ऐसे तोड़ के आप बना सकते हैं, ठीक है। आंसर बनेगा आराम से, ठीक। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, cos of -870, cos of -870, इसके अलावा आप लोगों को फॉर्मूला दे रखा, देखिए cos of -थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। cos और इस रेसिप्रोकल के लिए a पॉजिटिव है, बाकी सब फंक्शन क्या है माइनस आएगा। अब देखेंगे ऑलरेडी हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला अप्लाई cos of -थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos of -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला करना, ये पॉजिटिव आएगा केवल cos से के लिए, और बाकी चार फंक्शन के लिए क्या आएगा माइनस, sin ऑफ -थीटा माइनस sin थीटा, tan ऑफ -थीटा माइनस tan थीटा, ठीक। अब देखना ये फॉर्म देखना, cos ऑफ -थीटा फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ -थीटा। cos ऑफ -थीटा किसको बराबर है, cos थीटा, देयरफॉर आई कैन राइट cos ऑफ -870 इज इक्वल टू प्लस cos 870, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, just I'm using the formula. What is the formula? Cos of -theta is equal to cos theta. Cos of -theta is equal to cos theta होगा, तो cos of -870 भी क्या होगा, cos 870 होंगे। अब ये 870 को तोड़ना, 870 360 से ज्यादा है, 360 से ज्यादा हो तो आप तोड़ेगा 360 प्लस 360 कितना होगा, 360 प्लस 360 720। अब 870 से 720 को माइनस करें तो 051 प्लस 150, ठीक है। अब 870 को तोड़ेगा तो 870 को ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक, ऐसे तोड़ सकते हैं। अब देख लेना 360 प्लस 360 720 प्लस 150 870, ठीक। उसके बाद हमने बोलता है सब 360 को हटा देना, दो 360 दोनों को हटा देना। अब हटाने के बाद क्या बचा, 150, क्या बचा 150 बचा। तो 150 को हम फाइंड आउट करने बस, ओके। cos 870 हमको दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 360 बनाएंगे, 360 को कितना 360 सब 360 को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद आखिर में क्या बचा, केवल 150 बचा। दैट मींस cos 150 इज बराबर टू द cos 870, ठीक है। 870 को 90 270 180 360 कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए दिक्कत है, इसी वजह से तोड़ रहे 360 में, 360 प्लस 360
प्लस 150, ठीक है। पहले 360 लिखने के लिए कोशिश करेंगे, उतना नहीं है वो तो माइनस करके हम लिखेंगे। देखना पहले 2 360 हम लिखा था, अब तीसरा अकाउंट राइट, इफ आई एम राइटिंग इन दैट वैल्यू विल बी कमिंग 870 से ज्यादा है, ठीक है। इसी वजह से हम 870 से 720 माइनस करें तो 150 रहेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनेगा 360 प्लस 360 प्लस 150। अब cos 150 को आप कैसे लिखेंगे? cos 150 मींस है, यहां पे लिखा अब cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, नहीं तो cos 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। cos 150 को आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60। अब cos 90 प्लस थीटा, now this 90 is theta, this is the cos 90 plus theta, cos 90 plus theta आंसर क्या होगा? cos 90 plus theta ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, cos 90 plus 60, it is in the form of the cos 90 plus theta, it is 90 and it is theta, cos 90 plus theta होगा तो base function is cos and angle is 90, so then answer will be coming in terms of sin 60। लेकिन अब देखना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट है, whether it's plus or minus। 90 plus 60, 90 plus theta सेकंड कोऑर्डिनेट में ये देखना पड़ेगा, बेस फंक्शन का देखना पड़ेगा, नॉट द आंसर के लिए, ठीक है। आप साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा बेस फंक्शन के लिए, नॉट फॉर आंसर विल बी कमिंग इन टर्म्स ऑफ साइन, लेकिन और बेस फंक्शन इज व्हाट cos, ठीक है। नाउ इन सेकंड कोऑर्डिनेट cos इज माइनस, दैट्स व्हाई इसके आगे हम माइनस रिप्लेस करेंगे। sin 60 √3/2 दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2 इज द आंसर, ठीक है। माइनस √3/2 90 cos 90 प्लस 60 कितना आएगा? माइनस sin 60 आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, tan minus 4π/3, tan minus 4π/3। अब देखना ये पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करें, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए π/3 से π/3 इज व्हाट? रेडियन, π/3 इज व्हाट? रेडियन। अब डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला तो 180 अपॉन पाई लिख देना, पाई कैंसिल 60 आएगा, कितना है 60 डिग्रीज। That's what I explained बहुत पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था और करना था रेडियंस टू डिग्री। अदरवाइज सीधा सीधा आप याद कर लेना, वेयर पाई इज देयर, पाई की जगह 180 डिग्री से लेना है, क्योंकि पाई रेडियंस किसको बराबर है? 180 डिग्रीज को बराबर है। वेयर पाई इज देयर, ओके, पाई रेडियंस है, लेकिन पाई रेडियंस कितना डिग्रीज को बराबर होगा? 180 डिग्री। सब ऐसा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना पाई इज देयर, पाई की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? पाई की जगह 180 डिग्री से रिप्लेस करें तो 4π/3 में 4 मल्टीप्लाई से, अब पाई की जगह में सीधा 180 रिप्लेस करते हैं, 180 डिग्री से पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। अब 3 से कैंसिल होगा, 360 है, दैट इज 4 * 60 240, कितना है? एंगल 240 है। सो आई कैन राइट दैट tan minus 240 degrees, tan of minus 240, but it is in the form of tan minus theta। tan minus theta को हमने क्या फॉर्मूला दिया आप देख सकते हैं, माइनस tan theta, ठीक है। tan of minus theta is equal to minus tan theta, ठीक। अब इसको tan of minus 240 का ऑब्जेक्ट है माइनस tan 240, माइनस tan 240। अभी हम क्या करेंगे, पहले tan 240 वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम फाइंडिंग है tan 240 वैल्यू, tan 240 को कैसे लिखते हैं? tan 240 is equal to tan 270 minus 30 degrees। देखो tan 240 को आप लिखते हैं tan 270 minus 30, एंड ये तो tan है, एंगल इज 270 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 degrees। एंगल 270 होगा तो अब आंसर किस में आएगा? कॉट में आएगा tan के लिए, सो दैट इज कॉट इज इक्वल टू tan 270 minus 30 degrees is equal to cot 30 degrees। लेकिन ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 270 minus theta, 270 minus theta कहाँ है? थर्ड कोऑर्डिनेट, 270 में थर्ड कोऑर्डिनेट में सर थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या है? पॉजिटिव, दैट इज cot 30। सो cot 30 वैल्यू कितना होगा? √3। tan 30 वैल्यू 1/√3 में, अब cot 30 वैल्यू कितना होगा? √3। लेकिन ये आंसर नहीं, हमने ऑलरेडी माइनस को छोड़ दिया, इससे माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर
ये आंसर आएगा माइनस टेन टू 40 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इज द आंसर, फाइनल आंसर। हमने तो क्या फाइंड आउट किया था, केवल 10 टू 40, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस 10 टू 40 चाहिए। माइनस 10 टू 40 से उससे माइनस से और मल्टीप्लाई करके अब लिखना पड़ेगा। 10 टू 40 की वैल्यू आ रहा है, उठते रहे, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसके आगे माइनस लिए, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना, माइनस 10 टू 40 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इज द आंसर। ठीक, इसमें हम सम होमवर्क हम लिख रहे हैं, ये कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सो होमवर्क वी कैन sin 225 tan 330 degrees, so sin cos 2 pi by 3 sin 19 pi by 4 19 pi by 4 question number 1 2 3 4 this is the homework, okay, thank you।